All right. So till section 37 we had covered in the last class, and today we are going to go ahead from section 39 onwards. ठीक है, section 39 पे आप please mark कर लो that this section is on anticipatory breach. If you're asked anticipatory breach, section 39 talks about anticipatory breach. एक होता है आपका एक्चुअल ब्रीच. एक्चुअल ब्रीच कब होता है? जिस दिन डेट ऑफ इन्फोर्समेंट थी, जिस दिन डेट ऑफ परफॉर्मेंस था, आपने उस दिन ही मना कर दिया. ए ने बी को घर देना था ऑन 15th of February, but on 15th of February A refused to sell the house to B. So that is breach of contract. That is actual breach of contract. एंड उसमें जो आपको लाइबिलिटी है, जो कॉम्पनसेशन है, जो रिलीफ है, वो आपको सेक्शन 73 में मिलेगा. बट एंटिसिपेटरी ब्रीच क्या हुआ कि ए ने बी को घर देना था 15 फरवरी को, बट उसने 1 फरवरी को वो घर जो है एक्स को सेल आउट कर दिया. So now Mr. B has an option. Mr. B has an option that he can wait till 15th of February for the actual breach, or he can sue Mr. A on 1st of February or 2nd of February or 3rd of February, जब भी उसको पता चलता है कि the seller has made himself what? Has disabled himself. A has disabled himself. So in that case, it is an anticipatory breach. So you can just mark that when a party to a contract has refused to perform or disabled himself from performing his promise in his entirety, that's very important. It has to be in entirety. अगर entirety means whole, अगर partial है तो it is not anticipatory breach. Though it is not anticipatory breach. अगर A और B के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है कि ए बी को उस कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स है, ठीक है, उसमें के पर्टिकुलर्स है, उसमें कुछ टर्म्स है. क्या टर्म्स है कि वो 1st of February को 1st of February को वो क्या करेगा, 10 kgs ऑफ शुगर इसको डिलीवर करेगा. ठीक है, और फिर 15th Feb को 10 kg ऑफ शुगर डिलीवर करेगा. अब अगर उसने ये शुगर डिलीवर नहीं किया तो क्या बी ये कह सकता है कि अब वो 15th February को जो उसने शुगर डिलीवर करना था वो भी नहीं करेगा, एंड ही वांट्स टू रिवोक द कॉन्ट्रैक्ट सेइंग दैट इट इज एन एंटिसिपेटरी ब्रीच? कैन बी can is it a case of anticipatory breach? Did you understand my illustration? A and B के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है. कॉन्ट्रैक्ट की क्या टर्म्स है कि वो 20 किलो शुगर उस ए बी को डिलीवर करेगा, 200 bales of cotton देगा, but on different dates. One is on 1st of February and other is on the 2nd of February. First delivery will go on 1st, second delivery will go on your 15th of February. Now जो 1st February की डिलीवरी थी वो ए ने नहीं दी. अब on this ground, because A did not deliver B the first delivery, can be revoke it or can be claim anticipatory breach. Is it a case of anticipatory breach? Can he claim compensation under section 39 on the ground of anticipatory breach? Is it a case of anticipatory breach? Yes or no? Is it a case of anticipatory breach? No. Why? Because अगर उसने 10 kg 1st February को नहीं दिया, that does not mean that he will not deliver the 50 on 15th of February the remaining 10 kg. So it's very important that it has to be the performance, the refusal to perform or the disablement to perform is in entirety. A ने पूरा refuse कर दिया कि वो 20 का 20 किलो नहीं देगा, या ए ने बिल्कुल ही अपने आप को डिसेबल कर दिया कि उसकी बिल्कुल जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें 20 किलो ही महीने का उगता है और 20 किलो ही प्रोसेस होता है, और 20 किलो जो है वो क्या हो गया, उसने ऑलरेडी अपने किसी और को दे दिया. He has disabled himself. In that case, yes, it is anticipatory breach. Did you all understand? So in entirety has to be very important. ठीक है? The promisee may put an end to the contract. So my question was कि can be put an end to the contract on let's say on 2nd of February, on 3rd of February, or 5th of February, before 15th of February. No, he cannot because of this entirety. ठीक है Malavi? All right. So may put an end to the contract unless he has signified by words or conduct his acquiescence in its continuance. Acquiescence means
एक्सेप्टेंस इन इट्स कंटिन्यूअस। एक्सेप्टेंस अगर उसने दे दिया कि ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, आई विल वेट फॉर द डेट एक्चुअल डेट ऑफ परफॉर्मेंस। तो अगर वो एक्चुअल डेट ऑफ परफॉर्मेंस तक का वेट करता है तो फिर वो एक्चुअल ब्रीच हो जाएगा, और अगर वो एक्चुअल ब्रीच हो जाता है तो सेक्शन 73 के अंदर वो कॉम्पेंसेशन क्लेम कर सकता है। इज इट क्लियर? ऑलराइट, एंड देन यू कैन, ओके, सो बेटा आगे अगर हम देखें सेक्शन 40, 41, 42, you can't skip these sections and they are simple bare act based. You have to read them once for preliminary examination. Okay, all right, that's simply, and also the illustration, जैसे अगर मैं बात करूं सेक्शन 40 2008 में वहां से क्वेश्चन आया है, ठीक है, तो बेसिकली इनके इलास्ट्रेशन है सिंपली, और डेवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लाइबिलिटीज, ये भी आपको बेसिकली शेयरिंग ऑफ डेफिशिएंसीज आपका ये आ गया सेक्शन 43, व्हेन एनी one of joint promisers may be compelled to perform, section 43, 42, ठीक है, सेक्शन 44, ये आपको एक बारी पढ़ना ही पढ़ना है। These sections, please DIY, do it on your own. You can just read it once in case you don't understand, but there is nothing conceptual there. Just read it once, you'll understand. ठीक है? Coming to section 46, 46 to 50, again they are dealing with time. टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, इसमें भी आप ये सारे सेक्शंस, यू अंडरस्टैंड टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, जब आप टाइम मेंशन करते हैं, प्लेस मेंशन करते हैं, ठीक है, कि कहाँ पे परफॉर्मेंस होनी चाहिए, ठीक है। अब सेक्शन 46, 47, 48, 49 यू शुड रीड once, 50 very nicely you should read, illustrations very nicely you should read, again I'm repeating, 46 to 49 one bare reading, section 50 you should read nicely, especially the illustrations, स्पेशली द इलस्ट्रेशन। अगेन इलस्ट्रेशन डी भी आपका एक बारी एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए बेटा 52 वन रीडिंग, 53 इज यस यू 53 ऑल्सो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए। 53 क्या बात कर रहे हैं, लाइबिलिटी ऑफ पार्टी प्रिवेंटिंग इवेंट ऑन विच द कॉन्ट्रैक्ट इज टू टेक इफेक्ट, is to take effect. So section 53 is talking about जहां पे जिस पर्सन ने कॉन्ट्रैक्ट किया है वही उसको रोक रहा है कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने से। मतलब आप समझ रहे हैं 53 क्या कह रहा है, अगर ए और बी ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, ठीक है ना, क्या कॉन्ट्रैक्ट है कि ए 100 बेल्स ऑफ कॉटन बी को डिलीवर करेगा। मैं आपको सेक्शन 53 बता रही हूँ, 100 बेल्स ऑफ कॉटन, ठीक है। अब बी ही क्या कर रहा है, बी ही ए को प्रिवेंट कर रहा है फ्रॉम डिलीवरिंग दीज कॉटन्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ठीक है, लेट्स से बी इज गवर्नमेंट, ठीक है ना, ए हैड टू गिव 100 बेल्स ऑफ कॉटन टू द गवर्नमेंट, बट गवर्नमेंट ने ही वहां पे रोक लगा दी है, किस चीज की, नाउ गवर्नमेंट इज ओनली प्रिवेंटिंग ए कि इस स्टेट में कॉटन डिलीवर नहीं होगा, कॉटन का सेल नहीं होगा। इन दैट केस हु इज द अग्रीव्ड पार्टी, ए तो विलिंग है ना, ए तो विलिंग है, ही वांट्स टू डू द कॉन्ट्रैक्ट, ही वांट्स टू परफॉर्म इट, he wants to perform it. Now A is the aggrieved party, he can claim compensation where, he can claim compensation not under 73 but section 53 itself। बेटा क्यों 53? because please remember जब आप sections पढ़ते हो ICA में, you have to see that if the section is itself giving you the relief तो आप उसी section के अंदर आपको relief मिलेगा, but अगर वो section silent है then you will go to 73। okay, all right, now see it says when a contract, underline the term contract। तो contract क्या होता है, 2H, मतलब एक proper contract बन चुका है, contains reciprocal promises 2F, and one party to the contract prevents the other from performing his promise, भैया को बोलते हैं, performing his promise, the contract becomes voidable at the option of the party। So circle the term voidable, voidable at the option of the party so prevented, and he is entitled to compensation, underline compensation, entitled to compensation। compensation कहाँ मिल रहा है उसको, section 53 के, compensation from other party for any loss which he may sustain in consequence of the non-performance, underline non-performance of the contract। okay, one more very important thing, non-performance से मुझे याद आया, please आप underline करो non-performance of the contract, and non-performance से आप please also you should also go to this section which is section 75। बेटा हमने जो section, okay, हमने जो section voidable voidable agreements हमने कहाँ पे कवर किए, we covered voidable agreements section
14, सेक्शन 15, सेक्शन 16, सेक्शन 17, ये हमने सारे वॉइडेबल अग्रीमेंट्स कवर किए ना इसमें, जहां पे कंसेंट फ्री कंसेंट है, फ्री कंसेंट नहीं है, राइट? तो वहां पे सारे अग्रीमेंट्स जो है दे आर वॉइडेबल अंडर सेक्शन 19, राइट, एंड 19A। बट इफ यू सी 75 पार्टी, इसमें आपने बहुत, यू हैव टू बी केयरफुल इन द एग्जाम बिकॉज इट सेज, ये भी वॉइडेबल अग्रीमेंट्स की बात कर रहे हैं, कहते हैं पार्टी राइटफुली रिसेंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, अंडरलाइन करो, रिसेंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। 14, 15, 16, 17 के अंदर कौन रिसेंड कर रहा है? जिसका कंसेंट फ्री नहीं था ना, वो रिसेंड कर रहा है ना। सेक्शन 14, 15, 16, 17, 19 है, तो वो भी राइटफुली रिसेंड कर रहा है क्योंकि उसका कंसेंट ही फ्री नहीं था। इज एंटाइटल्ड टू कॉम्पनसेशन इज द पार्टी हु इज रिसेंडिंग द अग्रीमेंट अंडर सेक्शन 19, 19A, is he entitled to compensation under section 75? What is the marginal heading of 75? Party rightfully rescinding contract entitled to compensation. Entitled to compensation. Is he entitled to compensation here? Yes. A person who rightfully rescinds a contract is entitled to compensation for any damage which he may sustain through the non-fulfillment of the contract. Is he entitled here? Yes or no? Quickly answer. Mehek? Yes, ma'am. Is he entitled here, 75? Yes, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Yes. Now, can you explain why, Priya? No. What is 75 talking about? अगर बेटा जो यहाँ पे voidable है agreements, यहाँ पे जो voidable agreements है, इसका इसके क्या आपको रिलीफ्स मिलते हैं? इसका क्या रिलीफ मिलते हैं आपको? कौन से सेक्शंस में रिलीफ मिलते हैं? जो 19, 19A में जो voidable agreements है, उसके रिलीफ्स कहाँ मिलते हैं? क्विकली आंसर, अमृत। Yes, we have covered now, then there's no point. Yes, we have already covered this part. If an agreement is voidable under 1919A, where do you get the reliefs? What are the more reliefs? एक तो voidable, ये खुद ही एक रिलीफ है कि आपको एक ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप एक अग्रीमेंट को अवॉइड करो, ये खुद ही एक रिलीफ है ना। अगर मेरा कंसेंट फ्री नहीं था और मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया मालवी के साथ, तो मेरे को सबसे बड़ा रिलीफ क्या मिलेगा? यस, वेरी गुड अमित। 64, 65। मुझे सबसे पहला रिलीफ क्या चाहिए कि मेरा मालवी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको आप रद्द कर दो, उसको नल कर दो। यही सबसे पहला रिलीफ है ना जो मैं मांगूंगी, क्योंकि मैंने कंसेंट तो दिया था मालवी को बट मेरा कंसेंट फ्री नहीं था। तो सबसे पहला रिलीफ तो है 1919A। बट उसके साथ मैंने मालवी को कुछ पैसा भी दिया था, या मैंने अपना घर भी दे दिया था पोजेशन में, क्योंकि मैंने जब कॉन्ट्रैक्ट किया तो मैंने घर दे दिया और उसने मुझे पैसा दिया, कंसिडरेशन दिया। बट वो घर मैंने फ्री कंसेंट से नहीं दिया था ना, वो मेरे अनड्यू इन्फ्लुएंस में मैंने दिया था, फ्रॉड से दिया था, मिस रिप्रेजेंटेशन दी, कोर्जन से दिया था। तो पहला रिलीफ तो मुझे क्या चाहिए कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट जो है अवॉइड कर दिया जाए, रद्द कर दिया जाए। तो वो 19A में दूसरा रिलीफ क्या मुझे मांगा? अब जैसे अमित ने बताया, वेरी गुड, 64 एंड 65 जो आपकी रेस्टिट्यूशन की बात करता है। बट अगेन नाउ व्हाई नॉट 75? 75 कह रहा है कि you can also ask for compensation. Who can ask for compensation? The party who is rightfully rescinding a contract. Why, Priya? Now, why did you say no? Then what is 75 catering to? Yes, it says a person who rightfully rescinds a contract. So, बेटा महक यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वर्ड लिखा है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो जहां पे आपने एक कंसेंट 14, 15, 16 इनमें जो कंसेंट दिया है, वो कंसेंट ही आपका फ्री नहीं था, तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बना ना, वो अग्रीमेंट ही रह गया, वो अग्रीमेंट ही रह गया। तो रिसेंड्स अ कॉन्ट्रैक्ट, पहले तो सर्कल करो कॉन्ट्रैक्ट, is entitled to compensation for any damage which he has sustained through the non fulfillment of the contract। मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट बना, बट उस कॉन्ट्रैक्ट को वो राइटफुली रिसेंड कर सकता है। क्यों रिसेंड कर सकता है? बिकॉज ऑफ द नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। और इसी को आप देखो, अब जो अभी हम 53 पढ़ रहे हैं, कैन यू सी वहां पे लिखा है नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, नॉन परफॉर्म। अब वहां पे अब देखो बेटा, 7, ये आपका जो 53 है वो क्या कहता है कि ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट था, एक कॉन्ट्रैक्ट था, बट बी ने ए को प्रिवेंट किया, जिसकी वजह से ए कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं कर पाया, नॉन फुलफिलमेंट। बट व्हाई? बिकॉज बी प्रिवेंटेड हिम ना, ए तो विलिंग था कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए। अब ए के पास ऑप्शन है कि वो क्या कर सकता है
he can avoid the contract. वो avoidable हो गया ना. Now when he is avoiding the तो he is rightfully rescinding it. Why is he rightfully rescinding it? Because of the non-fulfillment of the contract. Non-fulfillment. तो इसको compensation कहाँ मिलेगा? इसको compensation मिलेगा section 75 में. किसको? Rescinder को. Rescinder को compensation मिलेगा 75 में. तो वो क्या कहता है? लाइबल ये कहता है देखो कॉम्पनसेशन और रेस्टिट्यूशन दो चीजें अलग है. 64 बात करता है रेस्टिट्यूशन की, 65 भी रेस्टिट्यूशन की, 75 कॉम्पनसेशन की, एंड आपका 73 कॉम्पनसेशन की, एंड जो आपका 53 है वो भी आपका क्या कह रहा है? सेल्फ कंटेन. बट आप समझ रहे हैं जहां पे एक पार्टी राइटफुली रिसेंड कर रही है उसको कॉम्पनसेशन 75 में मिलेगा, बट यहां पे 53 में आपको 75 में जाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि 53 में ऑलरेडी कॉम्पनसेशन दे रहा है वो. कहानी समझ में आई आपको सबको बेटा? ठीक है. तो 75 और 19 और 19A में यही डिफरेंस है कि 1919A में वॉइडेबल अग्रीमेंट है, यहाँ पे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है. एंड यहाँ पे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्यों है? बिकॉज ऑफ द नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. 1919A में वॉइडेबल क्यों है? बिकॉज द कंसेंट इज नॉट फ्री. कंसेंट इज नॉट फ्री. ओके. सो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं. आई फील I request all of you, please, your target should not be pre beta. ठीक है. थैंक यू महक. राइट बेटा, योर टारगेट हैज टू बी योर मेंस एंड इंटरव्यू. दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू नो वो कहीं ना कहीं आपको मतलब अगर आपने इसमें येस नो तुक्का भी लगा लिया ना, प्री में और प्री निकल गया, बट अगर आपकी रीजनिंग ठीक नहीं है ना तो आप मेंस में फंस जाएंगे. और अगर आपने मेंस भी निकाल लिया और फिर इंटरव्यू में अगर आप उस चीज को ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे और इंटरलिंक और इंट्रालिंक नहीं कर पाएंगे और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी तो वो इंटरव्यू में आपको पकड़ लेंगे. You're understanding? ठीक है. Today only I was talking to one of the student. You know, she's from National Law University. So she cleared her Haryana mains and she went for the interview and she got a बहुत अच्छा स्कोर था उसका हरियाणा में, बट उसका इंटरव्यू में बहुत ही कम नंबर आए. ठीक है. राजस्थान में she went up till mains. So that's why I'm saying please don't have short term targets, have long term targets. And for that इस तरीके से आपको बहुत जरूरी है कि आपको एक एक थ्रेड बेयर एट रीडिंग का conceptually you should be very very sound. Right? ठीक है. All right. Coming to the next section. Section 55, effect of failure to perform at a fixed time. Underline कर दो, fixed time in contract in which time is essential. Fixed time. Okay, in which time is essential. Okay, 55 से आपको पढ़ना चाहिए एक बारी, but then I will just explain you what section 55 is saying. देखो बेटा क्या होता है कि when two people enter into a contract, A and B, they enter into a contract. ठीक है. इसमें क्या हो सकता है? दो सिनेरियोज हो सकते हैं. एक हो सकता है टाइम इज द एसेंस, और दूसरा क्या हो सकता है? टाइम इज नॉट द एसेंस. टाइम इज नॉट द एसेंस. एसेंस का मतलब क्या हुआ? ऑफ इंपॉर्टेंस. टाइम इज नॉट ऑफ इंपॉर्टेंस. ठीक है. टाइम इज द एसेंस मतलब जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ दैट इफ सम वीआईपी हैज टू कम एंड यू बुक अ फ्लोरिस्ट कि आप एक बुके दे देना बिकॉज उस वीआईपी का एंट्री है और उस टाइम पे हमें उसको बुके देना है. इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है. बी जो है वो फ्लोरिस्ट है और इसको सुबह 10 बजे एक बुके देना था ए को. ठीक है. अब यहाँ पे क्या टाइम इज द एसेंस? वो दोपहर में आता है बुके लेकर जबकि वीआईपी आकर चला भी गया. तो क्या ऐसे केस में जो ए है, is he bound by the contract? Will he have to accept the bouquet because there was a contract? He has done the payment. He has done the payment. Can he accept a delayed? Can he accept a delayed acceptance? एक यहाँ पे delayed acceptance है ना. क्या ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये void है, valid है, voidable है? क्वेश्चन मार्क. एंड दूसरा जहां पे टाइम इज नॉट द एसेंस, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक घर बुक करवाया. ठीक है. और उसने कहा कि आपको पहला 1 फरवरी को आपको वो घर की डिलीवरी मिल जाएगी. ठीक है. बट 1 फरवरी को वहां पे पेंट हो रहा था और पेंट में थोड़ा सा डिले हो गया बिकॉज ऑफ अनसीजनल, बिकॉज वहां पे क्या है, बिन मौसम बारिश हो गई और वो पेंट जो है सूखा नहीं है और वहां पे डिलीवरी देने में मुझे जो है उनका डिले हो गया 2 दिन का. एंड नाउ दे गिव मी अ डिलेड डिलीवरी ऑफ 2 days एंड दे से दैट यू कैन टेक द हाउस आफ्टर 2 days, लेट्स से ऑन 4th of February और 3rd of February. उस केस में
वेल am I bound by the contract or can I rescind it? क्योंकि time is not the essence वहां पर. You're understanding? Time is not the essence. क्वेश्चन मार्क. इस केस में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, वॉइड है, वॉइडेबल है. इन सारे क्वेश्चंस का आपका आंसर यहाँ पे 55 मिलियन. सो जहां पे टाइम इज द एसेंस वहां पे इट विल बी वॉइडेबल. वॉइडेबल. ठीक है. एंड दैट इज योर पैरा 1 विच इज टू बी रेड विद पैरा 3. एंड जहां पे टाइम इज नॉट द एसेंस बेटा, जहां पे टाइम इज नॉट द एसेंस वहां पे द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड. ओनली थिंग दैट यू कैन क्लेम इज कॉम्पनसेशन फॉर द डिलेड. आपने 2 दिन मुझे और 2 दिन डिले किया ना, उसके लिए मुझे आप कॉम्पनसेशन दे दीजिए. ठीक है. इफ यू एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस. ऑलराइट. ठीक है. नाउ प्लीज लुक इनटू सेक्शन 55. इट सेज व्हेन अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट प्रॉमिसेस to do certain thing at or before a specified thing. certain thing मतलब एक चीज, और certain things मतलब एक से ज्यादा, at or before specified times, and fails to do any such thing or before specified time, the contract or so much of it has not been performed becomes, underline कर दो, voidable at the option of the promisee if the intention of the party was that the time should be of the essence. So voidable है if the time is the essence. ठीक है. Effect of such failure when time is not essential, if it was not the intention of the parties that time should be of the essence of the contract does not become voidable. That means contract is alive and you are bound. Contract is not by the failure to do such thing at or before the specified time, but the promisee is entitled to compensation. Compensation कैसे measure करेंगे? Compensation तो मिलेगा वहां पे. ठीक है. From the promisor for any loss occasioned to him by such failure. 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ता, 15 दिन का जो आपने मुझे delayed डिलीवरी दिया है, उसकी वजह से जो भी मुझे नुकसान दिया हुआ है उसका कॉम्पेंसेशन मुझे मिल सकता है. पैरा 3, इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस एट टाइम अदर देन द अग्रीड अपॉन, if in a case of a contract voidable on account of the promiser's failure to perform his promise at the time agreed. ये हम किसकी बात कर रहे हैं? voidable कब होगा? जब time is the essence. So para 3 is to be read with para 1. The promisee accepts performance of such promise at any time other than that agreed. और अगर वो बोलता है कि ठीक है आप मुझे बुके 2 बजे दे दो, the promisee cannot claim compensation for any loss occasion. Underline, circle it, cannot claim any compensation for a loss occasion by the non-performance of the promise at the time agreed, unless at the time of such acceptance he gives notice to the promiser of his intention to do so. So जहां पे टाइम इज द एसेंस, इस केस की मैं बात कर रही हूँ, वो 2 बजे अगर बुके लेकर आता है और आप कहते हो चलो ठीक है मुझे 2 बजे दे दो, कल भी एक फंक्शन है मैं उसमें आई यूज इट, बट यहाँ पे जो मिस्टर ए है उसको कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा. मिस्टर ए को कॉम्पनसेशन. बट अगर वो नोटिस देता है बी को, क्योंकि टाइम इज द एसेंस, उसके पास ऑप्शन है या तो वो अवॉइड कर दे या फिर उसको क्या अवॉइड ना करे. और अगर अवॉइड ना करे तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया, और अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो वो डिलेड एक्सेप्टेंस मान रहा है, तो डिलेड एक्सेप्टेंस मांग रहा है तो एक्सेप्ट कर रहा है, तो कॉम्पेंसेशन मांग सकता है? वो नहीं मांग सकता जनरल. बट अगर वो बी को कहता है कि मैं तेरे 2 बजे फूल तभी लूंगा अगर तू मुझे उसके लिए कॉम्पेंसेट करेगा, यू आर गिविंग मी फॉर 1000 bucks, नाउ यू गिव मी फॉर 500 bucks. Are you understanding? ठीक है. सो दैट इज, सो दिस इज अ लिटिल बिट ऑफ मोर कॉन्सेप्चुअल, इतना डिटेल में प्री के लिए तो नहीं, बट प्री के लिए 55 पैरा 1 एंड पैरा 2 यूज. टाइम इज द एसेंस, टाइम इज नॉट द एसेंस, voidable एंड इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. 56 ना, इफ आई कम टू अग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट, एन अग्रीमेंट. सो इसमें आपके देखो बेटा जो 56 है, ये आपका अग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट, ये आपकी इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी है. If there is an agreement to do an impossible act, see agreement word use किया है, then it is void. Contract to do act afterwards becoming impossible. तो यहाँ पे आपने 3 तरीके की impossibilities हैं. Theory of impossibility, can you tell me कौन सी impossibility है as per English law? पैरा 2 की अब मैं बात कर रही हूँ. पैरा 1 तो void ab initio है. ठीक है. void ab initio. A and B entered into an agreement to buy a house on Sun. Can that be ever enforced? No, it is absolutely void ab initio. ठीक है. Para 2 में it is talking about theory of impossibility. Theory of impossibility. Can you tell me the different kinds of impossibility that as per English law they have classified? क्या है? Change in circumstance, subsequent impossibility that. Physical, legal and एक और भी है ना? Physical, legal and आपके पैरा 2 में जो यस यू आर ऑल्सो राइट बेटा मालवी, ये आपकी सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं. ठीक है. दिस इज सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी ओनली. ऑलराइट. बट दिस हैज बीन
डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। जो आपका यहां पर दिया हुआ है वो है आपका फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी, आपका लीगल इम्पॉसिबिलिटी, और एक और कौन सी इम्पॉसिबिलिटी है जिसमें दैट क्वींस केस इज देयर? कैन एनीबडी रिकॉल? फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी, लीगल इम्पॉसिबिलिटी and none of you. Yes, that landmark case is there, जिसमें this person who books a house, when it frustrates the object of the contract is frustrated. जब एक कॉन्ट्रैक्ट फिजिकली पॉसिबल है, लीगली पॉसिबल है, but the object is frustrated. So there is one more kind, okay, which I'm not able to recall right now. There's one more kind, but I'll explain it to you. It talks about when the object is frustrated. When the object is frustrated, okay. तो ये कौन सी impossibilities हैं बेटा? Physical impossibility होता है कि जो physically जो आपने contract किया था वो physically अब possible ही नहीं है. A wanted to give his house to B, but वो A जो घर है उस पे आग लग गई है, ठीक है? या ए जो सब्जेक्ट मैटर है ना, द सब्जेक्ट मैटर इज डिस्ट्रॉयड। इन दैट केस इट इज फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? लीगल इम्पॉसिबिलिटी मीन्स कि सब्जेक्ट मैटर तो इंटैक्ट है, सब्जेक्ट मैटर इज देयर, बट जो वो घर बेचना था उसमें सरकार ने रोक लगा दिया कि वो अब जो घर है वो सरकारी उस लैंड में आता है और वहां पे कोई भी सेल जितने भी वहां पे प्लॉट्स हैं, जितने भी वो घर है वो सेल नहीं होंगे बिकॉज ऑफ the legal now the selling of the house becomes impossible because of the legal interference. Are you understanding? So one is the physical impossibility, other is the legal impossibility. Legal impossibility में आपने याद रखना कि subject matter है but legally वहां पे आप उसको enforce नहीं कर सकते हो because legally it has become, now it is unlawful, it is unlawful, therefore it has become legally impossible. So यहाँ पे क्या हो जाएगा? It is unlawful to deal with that subject matter. ठीक है? Now the third category which I'm talking about is when a agreement or when a contract, when two parties enter into a contract, वो physically भी possible है, legally भी possible है, but object frustrate हो गया. अब इस पे जो मैं आपको केस लॉ बता रही हूँ, उसके फैक्ट्स बता रही हूँ. On the third category I'm talking about, which is there is this person, Mr. A, who takes a floor on rent. Practical impossibility. Thank you, Arushi. Yes, this is the practical impossibility. Practical impossibility. ठीक है? That these three categories has been given by the English law, okay? But ये जो तीनों impossibilities हैं, ये आपके para 2 के अंदर covered है. Para 2 के अंदर covered है. We say that, you know, our section 56 is comprehensive to include all these kind of impossibility. I was explaining you practical impossibility. Practical impossibility is a situation where the subject matter is present. It is physically possible to deliver and perform that contract. लीगली भी कोई बार नहीं है, अनलॉफुल भी नहीं है, बट ऑब्जेक्ट फ्रस्ट्रेट हो गया. और अगर ऑब्जेक्ट ही फ्रस्ट्रेट हो गया है तो कोई फायदा ही नहीं है उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने का. और जब ऑब्जेक्ट फ्रस्ट्रेट हो जाए तो हम कहते हैं there is a practical impossibility. There is a practical impossibility. जैसे मैं आपको ये एग्जांपल दे रही थी, ये भी आपका एक लैंडमार्क केस है जिसके मैं आपको फैक्ट्स बता रही हूँ, ठीक है? एंड द फैक्ट्स आर दैट ए rents B's top floor to see the procession of Queen. He wanted to see the Queen. ठीक है? He wanted to see the Queen. So he takes B's topmost floor on a particular date and he conveys it to B कि मैं आपका घर का सबसे ऊपर वाला जो फ्लोर है वो किस लिए ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे क्वीन का प्रोसेशन देखना है. ठीक है? एंड व्हाट हैपेंस ऑन लेट्स से 15th of February अगेन. ठीक है? एंड ऑन 15th of February इट वाज अनाउंस कि वहां से क्वीन का प्रोसेशन निकलेगा. But because of Queen's health being low, the procession is cancelled now and it is announced on 10th of February कि 15th February को कोई भी procession नहीं होगा. Now अब A अगर वो B जो उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है B के साथ, अगर वो परफॉर्मेंस मतलब परफॉर्म, अब यहाँ पे जो घर है, जो फ्लैट है, वो फिजिकली तो पॉसिबल है, वो लीगली भी पॉसिबल है, बट यहाँ पे जो वो फ्लैट, वो जो फ्लोर ले रहा था रेंट पे, उसका ऑब्जेक्ट जो है दैट इज फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ही वांटेड इट ओनली फॉर वन सिंगल डे टू सी द प्रोसेशन एंड विच इज
cancelled now, the object is frustrated. So here also he can avoid it because of the practical impossibility. Because so इतना आपको तो ये subjective paper के लिए important है, but अभी अगर हम क्लॉज 2 पढ़े, आपने सिर्फ ये याद रखना है, बेशक जो प्राइमा फेसी आप जब पैरा 2 पढ़ते हैं तो दो चीजें तो हमें बिल्कुल विविडली दिखती हैं। कौन सी? कॉन्ट्रैक्ट टू डू एक्ट आफ्टरवर्ड्स बिकमिंग, आफ्टरवर्ड्स मतलब सब्सिक्वेंटली, पहले तो कॉन्ट्रैक्ट था। बिकमिंग इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल मतलब फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी, और अनलॉफुल दैट मीन्स लीगल इम्पॉसिबिलिटी। कॉन्ट्रैक्ट टू डू एन एक्ट विच आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, तो मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया था, कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद घर पे आग लग गई, कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद सरकार ने उस पर रोक लगा दी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद जो है प्रोसेशन कैंसिल हो गया। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बिकम्स इम्पॉसिबल और बाय रीजन ऑफ सम इवेंट व्हिच द प्रोमिसर कुड नॉट प्रिवेंट, see, or by reason of some event, underline this part, the promiser could not prevent, unlawful becomes void. So unlawful के ऊपर आप लिख सकते हो legal impossibility, ठीक है? And when the act becomes impossible, act becomes impossible, that means physical impossibility or even practical impossibility, and unlawful means legal impossibility. Compensation for loss through non-performance of act known to be impossible or unlawful. I'm not going to go in more detail because पूरा time 56 पे ही निकल जाएगा फिर. But I hope you are all understanding what 56 is talking about. 2-3 things you have to just remember. Theory of impossibility, initial impossibility para 1, subsequent impossibility para 2. Subsequent impossibility would also include legal, practical, and physical impossibility. Krell ठीक है? versus Henry, that is. Yes, Krell versus Henry. Thank you, Malavi. Krell versus Henry. That's the case. Very good. Krell versus Henry. ठीक है? And then the third paragraph, compensation for loss through non-performance of अब ये compensation की बात कर रहे हैं। देखो बेटा, अगर एक initial impossibility है, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी जो कि पैरा 1 में, उसमें कॉम्पनसेशन कहाँ मिलेगा? पैरा 3 में। इट सेज वेयर वन पर्सन हैज प्रॉमिस्ड टू डू समथिंग व्हिच ही न्यू और विद द रीजनेबल डिलिजेंस माइट हैव नोन एंड व्हिच द प्रॉमिसी डिड नॉट नो टू बी इम्पॉसिबल और अनलॉफुल, सच प्रॉमिसर मस्ट मेक कॉम्पनसेशन टू सच प्रॉमिसी फॉर एनी लॉस व्हिच सच प्रॉमिसी सस्टेन्स थ्रू द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस। सो अगर एक को पता है और एक को नहीं पता है तो वहां पे कॉम्पनसेशन पैरा 3 में मिलेगा, बट जो आपका पैरा 2 है उसके अंदर रेस्टिट्यूशन सेक्शन 65 के अंदर होगा बेटा, रेस्टिट्यूशन अंडर सेक्शन 65। ठीक है? देयर इज नो कॉम्पनसेशन, बट देन यस रेस्टिट्यूशन इज अंडर सेक्शन 65। कॉम्पनसेशन क्यों नहीं मिलेगा इम्पॉसिबल एक्ट? क्योंकि वो जब कुछ चीज आप इट इज जो चीज पॉसिबल ही नहीं है करने के लिए, उसके लिए आप हाउ कैन यू कॉम्पनसेट? मेरा घर जल गया, मैं क्या डिलीवर करूं आपको? ठीक है? और उसके ऊपर से मैं आपको क्या कॉम्पनसेशन दूं? मतलब आर यू अंडरस्टैंडिंग? ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ए ने घर देना था बट घर पे आग लग गई, आग लगने के बाद अब वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया ना, तो अब अगर उस घर के लिए पैसे दिए थे मिस्टर बी ने तो वो रेस्टिट्यूट कर सकते हो आप 65 में, बट एक कोई कॉम्पनसेशन ही देगा यहाँ पे, देयर इज नो कॉम्पनसेशन। ठीक है? 57 ऑलरेडी वी हैव डन, 58 15, अच्छा 59 से आप सिंपल बात कर सकते हो, अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स नाउ बेटा, अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स। ठीक है? आपने सिर्फ 59 60 61 59 60 61 ये 3 सेक्शंस हैं जिसको आप एक तो हम हेडिंग याद रख लो, अप्रोप्रिएशन दैट इज सेटिंग असाइड। ठीक है? और इनको हम कहते हैं क्लेटन्स रूल, क्लेटन्स रूल। और ये कौन से केस से हमने ये सेक्शन को लिया है? क्लेटन्स रूल कौन से सेक्शन से आया है? दिस इज द केस देवयान्स DEVAYNES वर्सेस नोबेल। इस केस को हम फेमसली क्या कहते हैं? क्लेटन्स रूल। और ये इस केस में आपको 3 रूल्स दिए थे जो सेक्शन 59 60 61 में दिए। ये these are right of appropriation. I'm not getting into the details of 59 60 61, you can just read it once. ठीक है? बट मैंने आपको बता, appropriation का मतलब होता है setting aside. It's a complete topic in itself. इतना डिटेल में जाने की अभी जरूरत नहीं है। जो इसमें मोटा मोटा आपको समझना है, इन 3 सेक्शन में 59 60 61 ये 3 सेक्शन है जिसमें रूल्स दिए हैं ऑफ सेटिंग असाइड ऑफ पेमेंट्स। और ये जो सेटिंग असाइड ऑफ पेमेंट्स के जो रूल्स हैं, ये क्लेटन्स रूल फेमसली हम इनको कहते हैं। क्लेटन क्यों कहते हैं? बिकॉज इसमें एक पार्टी थी क्लेटन, एंड ये केस का नाम जो था वो ये था, DEVAYNES वर्सेस नोबेल। ठीक है? वर्सेस नोबेल 1816 का था ये, सर विलियम ग्रांट का केस है ये, 1816 का ये केस था बेटा। ठीक है? इसमें आपका राइट ऑफ अप्रोप्रिएशंस दिए हुए हैं, 3 सेक्शंस हैं, एक बार आप इसको पढ़ना। एक में आपको राइट ऑफ अप्रोप्रिएशन ऑफ डेटर, क्रेडिटर एंड बाय लॉ,
ये 3 सेक्शंस आप इसको पढ़ सकते हो। 62 टॉक्स अबाउट नोवेशन। प्लीज अंडरलाइन नोवेशन। नोवेशन मीन्स नया, न्यू, एनीथिंग न्यू, इफेक्ट ऑफ नोवेशन। रिसेशन मीन्स खत्म करना, रिसेंड, एंड ऑल्टरेशन। ऑल्टरेशन मीन्स कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना। If the parties to a contract agree to substitute a new contract for it, substitute a new contract for it मतलब पहले we were dealing with 100 bales of cotton, अब हम 100 bales of cotton की जगह किसके साथ डील कर रहे हैं? We are dealing with Nike products. Are you understanding? So now effect is old contract will come to an end and new contract parties will be bound by the same. So substitute a new contract or rescinded. rescinded मतलब कभी कभी क्या होता है कि 2 पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करती हैं बट दोनों को परफॉर्मेंस नहीं देना है, they want to terminate it, तो rescind और इसका कॉम्प्लीमेंट्री SRA में कैंसिलेशन। और ऑल्टरेट मतलब ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट इंटैक्ट रहता है, अब उसमें कुछ ऑल्टरेशन करते हो। पहले आप 100 बेल्स ऑफ कॉटन दे रहे थे, अब 100 बेल्स ऑफ कॉटन के साथ साथ आप 100 कॉटन कुर्ताज भी उसमें ऐड कर रहे हो, ठीक है। ऑलराइट, सो यू कांट चेंज द बेसिक नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट व्हेन यू आर ऑल्टरिंग, बट यू कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट। 100 में से आप 50 बेल्स या 49 बेल्स या 60 बेल्स, सो यू हैव ऑल्टर्ड द क्वांटिटी, सो ऑल्टरेशन आल्सो हियर। सो बेसिकली आपको यहाँ पे जो सेक्शन है ये आपको क्या बोल सकता है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ सकता है? डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी बाय, या फिर ऐसे पूछ सकते हैं डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 62 कैन बी बाय नोवेशन, रिसेशन, ऑल्टरेशन। सो इट कैन बी बाय ऑल 3 ऑफ देम, ठीक है। So these are the methods of discharging. What is the best method of discharging the contract? Section quickly. What is the best method of discharging the contract? When 2 parties enter into a contract, what is the best method of discharging the contract? My homework for yesterday I had given you. Section 37 और उस yes 37 और 37 का पैरा 2 मैंने कहा था LRs। ये कुछ सेक्शन बेटा जो सेक्शंस पढ़ रहे हो उनके साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करते रहो, ठीक है। इसके नीचे आपकी इलस्ट्रेशंस है, प्लीज इलस्ट्रेशंस को देखना। 63 62 से क्वेश्चंस अभी आपके रिसेंटली आए हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में बेटा। 63 क्या कहता है? प्रोमिसी में डिस्पेंस विद, जो उस दिन मालवी आपका क्वेश्चन था वो यहाँ से हो सकता है, ठीक है। 63 से प्रोमिसी में डिस्पेंस विद और रिमिट परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। इसमें आपको इंग्लिश लॉ भी देखना है क्योंकि इंग्लिश लॉ थोड़ा डिफरेंट है यहाँ पे जो 63 में दिया हुआ है। ये क्या कह रहा है? एवरी प्रोमिसी में, अगर आप 62 में देखो दोनों पार्टीज जो है दे आर फ्री टू rescind और alter और even novation में दोनों parties amicably agree कर रही है, but यहाँ पे it is at the it is basically it is at the mercy of the promisee, we would say. Promisee may dispense with or remit wholly or in part the performance of the promise made to him, वहां ब्रैकेट क्लोज कर दो, दैट्स द फर्स्ट सिनेरियो। और मे एक्सटेंड द टाइम फॉर सच परफॉर्मेंस, ब्रैकेट क्लोज, सेकंड सिनेरियो। और मे एक्सेप्ट इंस्टेड ऑफ इट एनी सैटिस्फैक्शन विद व्हिच ही थिंक्स विद, दैट्स द थर्ड सिनेरियो। ये 3 सिनेरियोज हैं जो सेक्शन 63 के अंदर कवर्ड है और इसी के ऊपर आपको बहुत अच्छे से इलस्ट्रेशंस दिए हैं व्हिच यू कैन रीड लेटर ऑन। are you understanding? And English law is different here, okay? English law is different here, all right? Okay, then coming to 64 65 is talking about restitution in cases of voidable contracts, and 65 is talking about restitution in case of void contract. This I've already explained it to you, all right? Then we come to your, okay, causa is also important. causa, please mark causa contract। जब चैप्टर 5 को स्क्वायर कर दो, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा चैप्टर causa के साथ डील कर रहा है बेटा। causa contract, दो यहाँ पे वर्ड causa नहीं लिखा है, बट हम इसको in the judicial terms we say that it is very frequently used, that we use the term for this chapter of certain relations resembling those created by contract, quasi contract क्या होता है? quasi का मतलब क्या होता है? resembling to, looking like, quasi criminal proceedings, quasi civil proceedings, not actually criminal but similar to criminal, similar, quasi civil proceedings, not actually civil but similar to similar। जैसे आपका similar to civil, जैसे आपका मेंटेनेंस है, इट इज अंडर 125 CRPC, पर उसको हम क्या कहेंगे? इट इज सिमिलर टू सिविल प्रोसीडिंग्स ना, दो इट इज अंडर क्रिमिनल, ठीक है। बट यहाँ पे हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं? ये ऐसे आपके जो इसके अंदर कॉजा है, ये 1 2 3 एंड देन 4 and 5, तो ये 5 तरीके के कॉजाई कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। मतलब ये एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है बट ये रिजेंबल करते हैं कॉन्ट्रैक्ट को। कॉन्ट्रैक्ट नहीं है मतलब इसमें सेक्शन 10 फुलफिल नहीं हो रहा है, सेक्शन 10 फुलफिल नहीं हो रहा है, बट ये कॉन्ट्रैक्ट की तरह है। और जब एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट एंटर करती है ना, जब सेक्शन 10 फुलफिल हो रहा है, तो उसमें आपको जो ऑब्लिगेशंस हैं वो कौन सी ऑब्लिगेशंस है?
कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस है, और जो उसमें लाइबिलिटी है वो कौन सी लाइबिलिटी है? कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी है। सेक्शन 73 के अंदर आपको जो कॉम्पनसेशन मिलता है वो किस लिए मिलता है? बिकॉज ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और वो जो कॉन्ट्रैक्ट है जब ब्रीच होगा उसमें कौन सी लाइबिलिटीज अराइज होंगी? कॉन्ट्रैक्चुअल, मतलब एज पर कॉन्ट्रैक्ट। बट अगर आप ये जो 5 कॉजाई लाइबिलिटीज हैं, मैं आपको ब्रीफ कर रही हूँ बिफोर वी गो इनटू द सेक्शंस बिकॉज विल क्विकली मार्क। यहाँ पे जो लाइबिलिटीज हैं ये स्टैट्यूटरी लाइबिलिटी है, कॉन्ट्रैक्ट की वजह से लाइबिलिटी नहीं है, ये स्टैट्यूट की वजह से लाइबिलिटी। क्योंकि ये सेक्शन में ही आपको क्या बताया है कि अगर एक माइनर है, एक बच्चे के साथ अगर आप क्या करते हो, एक कॉन्ट्रैक्ट करते हो, तो वो तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है ना, बिकॉज बच्चा जो है ही इज इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एज पर सेक्शन 10, 11, 12, राइट, he is incompetent to contract. But section 68 बोलता है even if a person who is incapable of contracting, if you supply him necessaries, in that case वहां पे जो बच्चा है उसके ऊपर या फिर उसके एलआरस के ऊपर एक स्टैट्यूटरी लाइबिलिटी है। वो स्टैट्यूटरी लाइबिलिटी कहाँ पे है? 68 के अंदर। और यहाँ पे लाइबिलिटी क्या होगी बेटा? it is basically the reimbursement is the remedy here, and it is based on अनजस्ट इनरिचमेंट थ्योरी। बस ये आपके इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। 68 क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाइड टू पर्सन इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग और ऑन हिज अकाउंट। सो पर्सन हु इज इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, तो आप इसको प्लीज यू कैन जस्ट मार्क suited to his condition in life, supplied, bound, such incapable person is entitled to be reimbursed। ये आपने अंडरलाइन करना है। तो बेसिकली अगर एक बच्चा या एनी पर्सन हु इज इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, अगर आप उसको कोई भी नेसेसरी सप्लाई करते हो, इट शुड नॉट बी एक्सॉर्बिटेंट नेसेसरीज, ओनली इट शुड बी दोज नेसेसरीज विच आर सूटेड टू हिज कंडीशन इन लाइफ, तभी आप उस चीज का जो है रिएम्बर्समेंट मांग सकते हो। ठीक है, इज एवरीबडी क्लियर? देन 69, reimbursement of person paying money due by another in payment of which he is interested। okay, तो इसका भी आप 69 को मैं आपको आई कैन जस्ट यहाँ पे आप अंडरलाइन कर दो कि पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन द पेमेंट, इंटरेस्टेड इन द पेमेंट को अंडरलाइन करो, सर्कल करो, ऑफ मनी, अनदर इज बाउंड बाय लॉ। ठीक है, लेट्स से ए जो है, लेट्स से इज, लेट मी एक्सप्लेन दिस, लेट्स से देयर इज दिस मिस्टर ए, मिस्टर बी, ए इज द ओनर ऑफ अ लैंड, बी जो है इसका लेसी है या इसका टेनेंट है, ठीक है, और ये इसकी प्रेमिसेस पे रह रहा है। ठीक है बेटा, अब इस जो ये घर है, ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी का जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो किसको देना चाहिए? ओनर को देना चाहिए प्रॉपर्टी टैक्स ना। ही इज बाउंड टू पे द प्रॉपर्टी टैक्स, राइट? सो ओनर इज बाउंड बाय लॉ टू पे द प्रॉपर्टी टैक्स, बट he is not able to pay it, and if he does not pay it, तो ये जो प्रॉपर्टी है सरकार सीज कर लेगी। तो इसको, वो सीजर को बचाने के लिए, ताकि कोई पेनल्टी ना लगे उस प्रॉपर्टी में, बी क्या करता है? गवर्नमेंट को ये प्रॉपर्टी टैक्स दे देता है, जबकि ही इज नॉट बाउंड। अब जब उसने वो प्रॉपर्टी टैक्स दे दिया तो ए और बी के बीच में तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था ना। बट एज पर सेक्शन 69 now A is statutorily liable to reimburse B for the property tax that he has paid. Did you understand this example, all of you? Right? ठीक है, सो नाउ यहाँ पे बी जो है, ही इज द पर्सन हु इज इंटरेस्टेड, ए कौन है? ही इज द पर्सन हु इज बाउंड बाय लॉ। ठीक है, ही इज बाउंड बाय लॉ, and person interested has done any payment, and if he has done any payment, then the person who was bound by law is entitled to reimburse the person who was interested and has done the payment, but it should be lawful payment. Clear? ठीक है, then coming to सेक्शन 70, ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन एंजॉइंग बेनिफिट ऑफ, एक तो नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट को आप अंडरलाइन कर दो बेटा। फिर दूसरा आप याद करना है, यहाँ पे थ्योरी ऑफ क्वांटम मेरिट की वो बात कर रहा है, और इसका इलस्ट्रेशन ए एंड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन इसका जो रैशनल है अनजस्ट इनरिचमेंट थ्योरी है। ठीक है, ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन एंजॉइंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट। नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट, मैंने राशन वाले को क्या दिया? ऑर्डर दिया कि मेरे को क्या दे दो? राशन दे दो, बट वो गलत एड्रेस में राशन दे देता है, मेरी जगह मालवी को दे देता है। अब वो नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट तो नहीं था ना, मालवी के पास राशन आ गया, अब नाउ शी स्टार्ट्स यूजिंग दैट ग्रोसरी। इफ शी स्टार्ट्स यूजिंग द ग्रोसरी, इन दैट केस मालवी विल हैव टू कॉम्पनसेट मी, शी विल हैव टू कॉम्पनसेट मी। Did you understand? ठीक है, तो ये आपको इलस्ट्रेशन सेम यहाँ पर दिए, they can just twist and turn. So this is theory of quantum merit. Why do we call it as quantum merit?
पे एज पर क्वांटम, पे एज पर क्वांटिटी, क्वांटिटी दैट इज यूज, ठीक है। सो बेसिकली अगर उसने कुछ यूज ही नहीं किया है तो वो मुझे सारा सामान वापस कर देगी, पर अगर 10 किलो आटा था उसमें से उसने 5 किलो आटा यूज कर लिया, तो शी विल नॉट पे मी फॉर 10 kgs ऑफ आटा, शी विल गिव मी 5 kgs बैक एंड शी विल पे एज पर व्हाट शी हैज यूज, दैट इज बाय थ्योरी ऑफ क्वांटम मेरिट, ठीक है। सो 70, सो ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन enjoying, who is this person? Malavi, she is enjoying, what is she enjoying? A non-gratuitous act, ठीक है। सो वहां तो हियर शी इज लाइबल स्टैट्यूटरीली, दो देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट विद मी और हर, ना हमारे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। अगर मैं उसको सू भी करूंगी तो मालवी कहेगी मेरा तो मैम के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, मैं क्यों पे करूं मैम को, व्हाई शुड आई कॉम्पेंसेट, देयर इज नो एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट, बट देयर इज अ अनजस्ट एनरिचमेंट थ्योरी के ऊपर ये बेस्ड है, ठीक है। Then coming to 71, responsibility of finder of goods. Finder of goods, मैं चल रही थी रोड पर, मुझे एक अंगूठी मिल गई, अब वो मैंने अंगूठी ले ली, तो वहां पे जो मेरी, अब वहां पे आई हैव टू टेक केयर ऑफ दैट रिंग एज अ बेली, ठीक है, एज अ, तो दिस इज स्टैट्यूटरी बेलमेंट। Liability of person to whom money is paid or thing delivered by mistake or under coercion. So ये भी, अब मैं बैंक वाले के पास गई, बैंक को मैंने कहा कि मुझे आप 10 100 के नोट दो, उसने मुझे गलती से 1100 के नोट दे दिए, तो unjust enrichment theory, I am bound now, the banker can sue me for the extra payment that he has done to me by mistake, that is 72, so I am liable to pay him, I am liable to pay him or not pay him, liable to reimburse, liable to repay whatever extra I have got, ठीक है। So this is your this is your last section on your quasi contract. So how many how many statutory liabilities do we have under quasi contract? 68, 69, 70, 71 and 72, पांच, ठीक है। Ma'am, why is promissory estoppel spoken as a substitute for quasi contract? What बेटा? Why is promissory estoppel spoken as a substitute for quasi contract? Promissory estoppel, because Yes. promissory estoppel क्या है? When a When person represents and then he represents another person, believes on his representation, right? So यहाँ, and it is a substitute for the quasi contract, because यहाँ पर भी आपने अगर किसी चीज को if see what is happening here is also because जो promissory estoppel है, it is a rule of evidence. Estoppel is a rule of evidence, and there also you're stopping a person from doing something which he was not rightfully. You're stopping a person from doing something which he had earlier agreed, और अर्लियर जिस रिप्रेजेंटेशन के ऊपर उसने बिलीव किया, उस रिप्रेजेंटेशन को आपने ही बताया, और उस रिप्रेजेंटेशन से अगर आप रिबट करते हो तभी आपका एस्टॉपल का प्रिंसिपल अप्लाई करता है ना, रूल ऑफ एविडेंस, ठीक है ना। सो यू कांट से इट इज अ सब्स्टिट्यूट, बिकॉज जो रूल ऑफ एविडेंस है वो क्या है, इट इज जस्ट अ रूल ऑफ एविडेंस, मतलब रूल ऑफ, जो आपका प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल है, इट इज जस्ट अ रूल ऑफ एविडेंस। बट जो आपका कॉन्ट्रैक्चुअल क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी है, इसके ऊपर आप सूट फाइल कर सकते हो, एस्टॉपल के ऊपर आप कभी सूट नहीं फाइल कर सकते। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ऑन प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल कैन यू फाइल अ सूट? यू कांट फाइल अ सूट, it is simply a rule of evidence. Why it is a rule of evidence? Where you can stop a party from what? From retracting his earlier statement, but in quasi contract बेटा, quasi contract में आप सूट फाइल कर सकते हो। So आपका क्वेश्चन क्या है कि मैम, is promissory estoppel a no, substitute? promissory estoppel is sometimes spoken as a substitute for quasi contract. This is the answer. This is the answer to what question? What is the question? I'll send the question in the group. Like, Yeah, please kindly send, ठीक the है। statement was itself given, so it is true. Is a substitute for quasi contract. Yes. Can anybody else also explain? This is for mains. Pre only, HP pre. Okay. Can anybody else? But what are the options? We don't know, na? Okay, let me just break this down for you. ठीक है, because जब तक वो gray area रहेगा, then okay. देखो बेटा, what I understand is जो promissory estoppel है, if you look into promissory estoppel, it is based on what doctrine? It is based on the doctrine of equity, isn't it? It is an equitable doctrine. Why it is based on equity, just and reasonableness? Because it is preventing a person from retracting from his earlier statement. जो आपने पहले कुछ बोला और दूसरी वाली पार्टी ने आपकी उस रिप्रेजेंटेशन जो आपने कहा था उसके ऊपर बिलीव करके अपनी लीगल पोजीशन को चेंज किया,
तो अब आप उस पर्सन को रोक सकते हो अगर वो रिट्रैक्ट करता है फ्रॉम हिज अर्लियर रिप्रेजेंटेशन। ये है आपका प्रोमिसरी एस्टॉपल। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, जस्ट एंड रीजनेबलनेस। ठीक है। सो अगेन देयर इज नो फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, देयर इज नो फॉर्मल कंसिडरेशन, बट यहाँ पे सिर्फ हम प्रोमिसरी एस्टॉपल को क्यों हम इस डॉक्ट्रिन को यूज करते हैं, जस्ट टू प्रिवेंट द इनजस्टिस टू द पार्टी। नाउ इफ आई टॉक अबाउट quasi contract, if I talk about quasi contract also can be used as a substitute for promissory estoppel can be used as a substitute for quasi contract, because why? Again quasi contract में जैसे हमने section 68 पढ़ा, जैसे हमने section 70 पढ़ा, जिसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जहां पे मालवी के पास मेरी ग्रोसरीज चली गई, तो क्या मालवी का कोई फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट था मेरे साथ या फिर उस शॉपकीपर के साथ? वॉज देयर एनी फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट? Was there any formal contract between me and Malavi? Yes, Malavi, was there any formal contract? No, ma'am. There is no formal contract. So even if where you have supplied necessities to an person who is incapable, there is no formal contract. There is no formal contract, but there is a statutory liability on Malavi, or there is a statutory liability on a minor, or there is a statutory liability on an unsound mind person. There is a statutory liability on a person who finds the lost goods. कैसी liability है? It is basically based on unjust enrichment theory. Preventing unjust enrichment. Unjust enrichment. Unjust enrichment. So we understand that, both the doctrines, that is your principle of estoppel, that is promissory estoppel, and quasi contract, both these doctrine, promissory estoppel and quasi contract, they are इनका जो एक rational है, जो एक policy है, they are aiming to prevent unfairness. They are aiming to prevent unfairness. So quasi contract is also based on restitution, because I also made you, so that is the always whenever you're reading a section, repeatedly I have been telling कि policy को पढ़ना बहुत जरूरी है। आप समझ रहे हैं quasi contract की भी जो policy है वो क्या है? It is based on unjust enrichment theory. So promissory estoppel can act as a substitute when a quasi contractual remedy is unavailable, so that you are ensuring fairness. You're ensuring fairness wherever there is a non-contractual dealing. The Did you question understand? exactly is promissory estoppel You is can send it in the group, beta. Okay. You can send it in the Is- group now. Oh, the group is closed. I'll open it. I'll open. But did you understand the concept? Did all of you understand the concept? Yes? Yes, all of you? Okay. No responses, huh? Okay, Mehak, good. Thank you for responding. All right. So it's very important. कोई भी doctrine करो, उसका rational आपको पता होना चाहिए, ठीक है? Okay, now if you can just come back to now 73. Yes, आपका Hadley versus Baxendale, actual breach of contract, rules for measurement, general damages, special damages. ये आपको 73 में दिया है. 73 para 1 की मैं बात कर रही हूँ, और जो 73 para 3 है वहां पे आपका quasi contractual obligation की बात कर रहा है, और also जो आपका such जो para 2 है is not to be given for any remote or indirect loss. Underline remote losses के लिए, remote losses, damages के लिए आपको compensation नहीं मिलता है 73 के अंदर. I book a flight to Delhi, and then from Delhi I had a connecting flight to, let's say, Bombay, and from Bombay I had a connecting flight to Calcutta. But मेरी जो flight Delhi की थी got delayed, because of which I could not even take the all other flights. So can I claim compensation for all other flights? No, I can only claim compensation for the flight on which I was booked. I cannot claim compensation for the remote damages as per para 2. Para 3 is specifically talking about, can you see वहाँ पे जो marginal heading है, compensation for failure to discharge obligation resembling those created by. So it is talking about compensation in cases of quasi. Explanation is important. Please read the explanation. ठीक है? Explanation is talking about कि जहाँ पे एक person के पास, even if there is a breach of contract, even if there is a actual breach of contract and the person is the aggrieved party is entitled to compensation, but if we had the ways to, mitigate the losses, तो उसको वो जो मीन्स है उसको अडॉप्ट करने चाहिए थे. अगर वो अडॉप्ट नहीं करता है, इन दैट केस उसको वो कॉम्पनसेशन उतना नहीं मिलेगा. तो जो एक्सप्लेनेशन है, इट इज अगेंस्ट द अग्रीव्ड पर्सन, whereas 73 para 1, para 2 and para 3, they are all in the favor of the aggrieved person. Is everybody clear?
is in the favor of the agreed person in the sense that आपको वहां पे compensation मिलेगा. ठीक है. 74 वेरी इंपॉर्टेंट. ये 74 किस चीज की बात कर रहा है? 74 बात कर रहा है जहां पे कभी कभी क्या होता है ना, यू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही आप पहले से स्टुपुलेट कर देते हो, इन केस देयर इज ब्रीच the parties would be liable to compensate the other for 1 lakh, for 10,000, for 50,000, for 5,000. So already stipulated amount, already stipulated compensation is वो जो agreement, वो जो contract है या जो वो terms है, is the party bound? Yes, the party is bound. 74, but it should not be an exorbitant amount. It should not be a penalty. It should not be a penalty. So आप यहाँ पे reasonable compensation, second last line अगर आप पढ़ें, turn the page and see reasonable compensation होना चाहिए. It should not be a penalty which is stipulated in the agreement. ठीक है. Then 75 हम कर चुके हैं. These were all sections related to general rules of contract. I will also quickly take up special contracts because there's very less time. Exam is very, very near, beta. So you have to spare another few minutes so that I can just finish off ICA. Are all of you up for it? Yes, or you want me to take this up tomorrow, the special contracts? Quickly give me a thumbs up if in case you want me to pick it up. Chota sa, just, the special contracts won't require much time. If you're okay, I can also. Okay, Arushi has given me a thumbs up. Others? Mehek, Priya, Malavi, yes? Okay, so I'm presuming it's deemed admission. I'm presuming when there's no response, I will deem it that yes, you're all okay. Ma'am, All right? Okay. You want to finish till 2:38? Yeah. I want to finish it up till there. Can I do that? Ma'am, if you could do it tomorrow. Yes. So one-on-one. Yes, others? Are you okay? I don't know how well your Mehek, okay. I don't know how well your preparation is because it would need time. Yes. So Arushi, I think then we'll pull it up tomorrow because yes, there are others who would want time. Okay. All right. So we'll take it up tomorrow. Ma'am, if you want, we can take it out tomorrow, like earlier or later or whatever. Other time also is fine, whatever you're comfortable. Okay. In So the morning also we can take, or in evening extended also, whatever you're comfortable.